دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ کب بات کیا بھیا، آپ کو کب کہا ہے کچھ؟ ہاں، تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے نا، آپ کون ہے کیا ہے، معلوم ہو جاتا 2 منٹ میں۔ جی آپ اپنا تعارف کرائیے، کون ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ آواز برابر آ نہیں رہی، آواز رہی ہے کٹ آپ کی، واپس حساب فرما لیجیے۔ نہیں، آپ اپنا تعارف کرائیے نا۔ جی میرا نام انسان علی ہے بھیا۔ عالم ہیں آپ؟ انسان علی نہیں، عالم دین ہے کیا پوچھا؟ نہیں بھیا، عالم دین نہیں ہے، طالب علم۔ طالب علم ہے۔ کس مسلک سے تعلق ہے آپ کا؟ ہاں، کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو؟ بریلوی۔ اچھا، میں سید ذاکر بات کر رہا ہوں، تلنگانہ حیدرآباد سے۔ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق کئی بریلوی اور کئی دیوبندی کافر ہو گئے نا بھائی۔ کیا 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 امام اعظم؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے ضمن میں آ کر کئی بریلوی اور کئی دیوبندی کافر ہو جا رہے ہو۔ کیا 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 آواز صاف نہیں آ رہی ہے صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو اکثر بریلوی، ہاں سنیے، میں نے کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تک بولتے رہوں گا انشاءاللہ۔ اکثر بریلوی اور دیوبندی، سمجھ میں آ رہی آواز؟ ہاں آ رہی آواز۔ اکثر دیوبندی اور بریلوی اپنے عقیدے کے ایسے عقیدے ان لوگوں نے پال رکھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق وہ لوگ کافر ہو رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق بریلوی کافر ہو رہے ہیں؟ ہاں ہاں۔ کیسے؟ جیسے کہ آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کا جواب دیجئے نا، نہیں معلوم آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، یہ اللہ عین اللہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنے والا، جیسے اس مسئلے مسائل کو چھیڑنے والا یا اس مسئلے پہ بات کرنے والا ہے نا، بدعتی ہوتا ہے۔ کون بولے آپ کو یہ؟ سمجھ گئے؟ اور جو آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو پیش بتا رہے ہیں کہ ان کے مطابق بریلوی جو ہے کافر ہے، مشرک ہے، نہیں بولا میں، کر لیجیے کون سی کتاب نہیں آپ بولوں گا، جب آپ اپنا عقیدہ بتائیں گے اللہ کہاں ہے تب میں آپ کو بتاؤں گا نا۔ نہیں، آپ نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول۔ نہیں، آپ جس رب کی عبادت کر رہے ہو، رب کہاں ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ اتنا گول گول گھما رہے گئی بات کو۔ رب تعالیٰ کہاں ہے آپ کو نہیں معلوم، اب رب تعالیٰ کی بھی جگہ آپ لوگ متعین کر رہے ہو، اب آپ سے بڑا بدعتی کون ہوگا؟ ہمارا تو منہج یہ ہے کہ رب تعالیٰ ہمارا جو رب ہے جگہ مکان سے پاک ہے، کسی جگہ مکان کے گھیرے میں نہیں ہے، وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ ہے ہمارا منہج۔ جب آپ اللہ کا ایک جگہ متعین کر رہے ہو، اللہ کہاں؟ ہاں میری بات تو سنیے، ابھی آپ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، ارے سنو نا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں نہیں ہے اور زمینوں میں بھی نہیں ہے۔ اب ہم نے جو کہا آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں آپ کو جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے نا، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے جو کہا آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ بتائیں۔ آپ کچھ پڑھ لکھ کر اہل حدیث بنے یا مفت میں بنے؟ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے۔ سنو میری ہاں تو اسی لیے تو بول رہا ہوں میں، یہ کہاں ہے بتا رہا ہوں، سن لو آپ۔ اس کا مطلب آسمانوں میں نہیں ہے نا، پاک ہے اور کسی جگہ یا مکان کے گھیرے میں نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئی ہے۔ ہاں یہ آپ کی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے ذریعے، ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے؟
अल्लाह ताला की जात कहाँ है? हाँ अब आप ही बता दें कहाँ है अल्लाह ताला की जात। हाँ, अब देखो अभी आप हमारे हमारा जो मनहज है वो मैंने बता दिया। अब आप जात की बात करें तो बताएं अल्लाह की जात कहाँ है? हाँ, तो आपको मैं पूछा तो आप उसका मतलब आपको नहीं मालूम है? आसमानों में है? आप बता दें। हाँ, नहीं मालूम है ना? नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम। तो पहले आपके इमाम साहब का फतवा दे देता हूँ आपको। ये जो है तो फिकुल अकबर और फिकुल अबसत के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। कौन सा? एक मिनट किताब को वापस बताएं। फिकुल अकबर, फिकह अकबर, और एक है फिकुल अबसत, और एक है अर्रसाइलु सबा, और एक है अर्रसाइलु सबा, अल मसाइल सबा। हाँ हाँ, अर्रसाइल, रसाइल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के रसाइल। अच्छा चलिए बताइए। हाँ, और उसकी जो है सो इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको नकल किया है। कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, जो शख्स ये कहे कि मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला आसमानों में है या जमीन में है, मुझे नहीं मालूम है अल्लाह ताला कहाँ है, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बता रहे अपने वो इस कौल की बिना पर काफिर हो गया, फकत कफर। तो किसने ऐसा कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि अल्लाह ताला अभी तो आपने कहा कि अल्लाह ताला कहाँ है, पूछा तो अभी बोले नहीं मालूम। मैंने तो कह दिया कि अल्लाह तबारुक व तआला किसी घर या मकान के घेरे में नहीं है। इसका मतलब आसमानों में नहीं है। मकान से वो पाक है, अपने इल्म और कुदरत की एतबार से पूरी कायनात को घेरे हुई है। और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का आप फतवा ये सुना रहे हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा कह रहे हैं कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ना जमीन में है ना आसमान में है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है, तो वो काफिर है। अब मारे घुटना फूटे सर। हाँ, तो आपको भी नहीं मालूम ना? बात हुई यार, आप नहीं, अभी आप दोगली पॉलिसी अपना नहीं, कुछ और रहता है, इबारत की वजह में दलील कुछ और देते हो। मैं दे रहा हूँ ना, अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं दलील के ऊपर ख्याल कर लो, हमारे मनहज के ऊपर ख्याल कर लो। हमने अल्लाह को जमीन या आसमान में होने का इनकार किया है क्या? अभी तो आप बोले नहीं मालूम, बोले अगर आप जमीन में मानेंगे तो मेरी बात सुनिए ना। मैंने कहा अल्लाह तो है, इस तरह से है हमारा ये मनहज। आप कहें तो अल्लाह की जात कहाँ है? तो मैं यही तो बता, मेरी बात सुने ना। आपने कहा आप अल्लाह ताला को किसी भी जगह में या किसी भी जहत में नहीं मानते। अगर आप जमीन में मानेंगे तो जगह जहत लाजिम आएगी, आसमान में मानेंगे तभी जगह जहत लाजिम आएगी। सुनो, अरे मेरी बात होने दो, उसके बाद जवाब दो ना। कहा है अब अल्लाह की जात के ऊपर आप बात करो कि अल्लाह की जात कहाँ है। मतलब जात उसकी एक जगह उसके लिए आप मुकर्रर कर रहे हो, एक जगह के घेरे में उसकी जात मुकर्रर कर रहे हो। सबसे बड़ा कुफ्र और बिदती तो आप कुफ्र कर रहे हो, बिदती वाला मामला उठा रहे हो आप। गलत बात है ये, आपकी लाइल्मी और जिहालत का कैसे गलत बात है? अल्लाह की जात कोई कितने अल्लाह की जात की कोई जगह है? आप मुझे मैं बताऊंगा ना आपको, आप कहीं को परेशान हो रहे, मैं दलील दूंगा ना। आपको नहीं मालूम है, आप मुंह बंद कर लिए इधर और बोल रहे अपनी अकल लगा के। दलील दीजिए, आप फालतू लब्बाजी नहीं, दलील दीजिए। आप तो एक काम ये करो, उसूल तय करो, 2 मिनट आप बोलो, 2 मिनट मैं बोलूंगा। जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा आप दलील दे दीजिए, मैं खामोश रहूंगा, आप एक मिनट बोलिए। तो अभी आपका जो अकीदा जो आप बताए कि अल्लाह ताला को आप किसी भी जगह में जहत में नहीं मानते, यानी कि अगर आपके कौल के मुताबिक अगर अल्लाह ताला को आसमान पर या अर्श पर मानेंगे तो जगह जहत लाजिम आएगी, क्योंकि वो तो एक आसमान एक जहत है, जमीन एक जहत है। जमीन में मानेंगे तब भी जगह जहत लाजिम आएगी। इसका मतलब ये निकला कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह ना आसमानों में है ना जमीनों में। क्यों? बकौल आपकी कौल के अगर मानेंगे तो फिर जगह जहत लाजिम आ जाएगी ना। माज़अल्लाह इन्ना लिल्लाह, ये तो आपने अकल लगाई। अब अल्लाह ताला आप अपने कयास, आप अपने तो घटिया कयास कर रहे हैं हमारी बातों पर। आप तो हम उसके कयास को खयास से मेरी बात आप समझे नहीं, आप मेरी बात को आप समझे नहीं, और या तो समझ कर आप ना समझ बन रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ लिख कर अहले हदीस बने या मुफ्त में अहले हदीस बने। नहीं, हम तो मैंने कहा जगह और मकान से पाक है। अच्छा, वो कहाँ है? वो जगह मकान के घेरे में नहीं है, बल्कि पूरे कायनात को अपने इल्म कुदरत से घेरे हुई है। हाँ। अब आगे अल्लाह कहाँ है, आप उसकी दलील मुझे दीजिए। मैं दे देता हूँ ना। हाँ, चलिए, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श के ऊपर इस्तेवा फरमाया अपनी शान के लायक। ठीक। अब सही बुखारी किताब तौहीद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कायनात की तख्लीक को मुकम्मल कर चुका तो अल्लाह ताला ने एक तहरीर लिखी, उस तहरीर को अल्लाह ने अपने पास अर्श के ऊपर रखा है। और सही और जो है सो सही इब्ने खुज़ैमा में इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला पहले आसमान से दूसरे आसमान का फासला बता रहे कि 500 साल। उसके बताते बताते 7 आसमान का उन्होंने फासला बताया। उसके बाद इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला कह रहे हैं
के आसमान के ऊपर पानी है 7 आसमान के बाद, फिर वो पानी की तह उन्होंने बताई, उसके बाद कहा कि उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है और अल्लाह अर्श के ऊपर है। अब उन्होंने जहत बता दी ना, साहबी रसूल ने जहत बताई, अल्लाह के नबी ने जहत बताई, तो वो ना जगह साबित हो रही ना जहत साबित हो रही। आप तकलीद, मेरी बात सुन लेना, आप तकलीद करने के बाद आपको समझ में आया कि वो जो है जगह और जहत है, वो कैसा समझ में आया आपको? ये मतलब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये बात नकल करके कह रहे हैं, क्या बात नकल करके? जो ये कहे कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह ताला आसमानों में है या जमीनों में, फकद कफर, वो अपने इस कौल की बिना पर काफिर हो गया। और जान लो अल्लाह ने इरशाद फरमाया अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, रहमान अर्श के ऊपर है और अल्लाह का अर्श 7 आसमानों के ऊपर है। ये क्या है 7 आसमानों के ऊपर? ये तो जहद बताई जा रही है, इमाम अपने पर जहद बताई, अल्लाह के नबी ने जहद बताई माशाअल्लाह से। 1 मिनट हुआ नहीं आपका, मैं बोलूं? हाँ चलो अब आप बोलो। अल-रहमानुन अला क्या कौन सा आयत पढ़े आप? अल-रहमान। हाँ आप जो चाहे बोलना है बोलो, मैं आपके बीच में नहीं बोल। ये जो आयत आपने पढ़ी है अल-रहमान अल-रहमान इस्तवा, है ना? नहीं, आप जो चाहे बोलो, खैर आपको आयत पढ़ने नहीं आ रहा, कोई मसले की बात नहीं। नहीं, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अल-रहमान क्या अल-रहमान अला अर्श इस्तवा, अल्लाह अकबर, कुरान की आयत भी पढ़ने नहीं आ रही है आपको? इन्ना लिल्लाहि। नहीं, ये जो आपने तकलीफ करे तो ऐसी सोता देखो। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे तकलीफ करे तो ऐसी सोता देखो। सुनो मेरी बात सुनो। ये जो आयत आपने पढ़ी है ये मुताशाबे में से है। कौन बोले? ये अलग बात है कि मैं, ये अलग बात है। नहीं, ये आयत में मुताशाबिहात है, कौन बोले? कौन बोला? सनफ में कौन बोले, उनका नाम बताइए। अरे नाम क्या, तफसीर पढ़ लीजिए। किसकी तफसीर? कौन सी नाम बताओ? अरे किसी की भी तफसीर पढ़ लीजिए। किसी ने इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो यार। सुनो, बता रहा हूँ, सुनोगे यार? अब मैं बोला नहीं हूँ, आप बोल रहे हो। बोलो, झूठ मत बोलो। उलूमुल कुरान में इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये आयत मुताशाबे में से है, और मुताशाबे आयत पे अमल करने वाले से बचने के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये वही लोग हैं जो मुताशाबी आयत पर अमल करते हैं, इनसे बचो, इनसे दूर रहो, ये तुम्हें गुमराह कर देंगे। मातुरीदी बन गए आप लोग। इमाम खलीफा की अकीदत। और सुनो, उसूल हदीस बताता हूँ। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिस तरह कुरान की आयत मुताशाबे है, उसी तरह हदीस मुबारका में भी कुछ हदीस ऐसी है जो मुताशाबे में से है, जो ऐन अल्लाह के ऊपर से आया है। समझ गए? तो आप वही कह रहा हूँ कि कुछ पढ़ लिख कर अहले हदीस बने हैं या मुफ्त में अहले हदीस बने। एक बार इस्मा रिजाल और सलफ सालेहीन का एक बार मनहज खंगाल के उसके बाद आप जो है अहले हदीस बनते तो अच्छा था। इमाम शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह तोहफे असना असारिया में शियाओं का रद्द किया है, और उन्होंने साफ तौर पे लिख दिया है। एक शिया था और शिया उसका नाम था यूनुस बिन अब्दुल रहमान। वो उसका अकीदा था कि अल्लाह अर्श पर है, आप ही की तरह। अल्लाह के नबी का भी यही अकीदा था, सहाबी रसूल का अकीदा था। अब्दुल अजीज देलवी इमाम अबू हनीफा का अकीदा था। सुनो, इमाम अबू हनीफा की जो आपने दलील दी है वो तो आपने अपने कयास के मुताबिक तोड़ मरोड़ के दी। हमारा अकीदा वो है ही नहीं जो इमाम आजम अबू हनीफा का फतवा है। लेकिन शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो ये हुक्म है, ये जो है कि शिया का ये अकीदा है कि अल्लाह अर्श पर है। ये शिया ही मानते हैं अल्लाह के लिए एक जगह, एक मकान जो है मुतय्यन कर दिए हैं। तो आप वाकई अहले हदीस जमात जो होता है, जैसे आप हैं, वो कई मिक्सिंग चीज से बने, राफजी, खारजी, शिया सब मिक्स करके आप लोग बने। और मुताशाबे आयत पे अमल करना गोया या उससे अकीदा बनाना शवाए गुमराही है, और इससे आगे कुछ नहीं है। हो गई आपकी बात? हो गई क्या? आप अंधेरे में हो? अरे सुनो यार, अभी मैं जवाब देता हूँ ना, तुम्हारी धजिया उड़ा दूंगा तकलीफ की। देखो अभी आपने कहा ये आयत, अल्लाह पे थे, अब तकलीफ पे धजिया उड़ाने लगे यार। अजीब हाल है आपका। बुनियाद बनाएंगे आपको जो है आसमा और रिजाल का इल्म मारने लगे, आसमा और रिजाल का इल्म हासिल करो बोल रहे, खुद को एक आयत पढ़ने नहीं आ रहा, 3 बार 4 बार जो है तुम दोहरा रहे, पता नहीं आ रहा तुम्हारा। झूठी दावा करते हो कि हम सुनो यार, अभी तुम्हारी बात सुना ना मैं, अमल करते हैं। अच्छा सुनो, अभी सुनो, क्या कुरान, अरे सुनो यार, न सही हदीस पे बल्कि मुताशाबे पे है। अच्छा ये आयत अगर मुतशाबिहात, सुनो ना, आपकी अकीदों से अरे यार सुनो, अगर ये आयत मुतशाबिहात है बकौल तुम्हारे, तो मुतशाबिहात आयत के ऊपर इजमा होता है, इजमा होता है इसके ऊपर। अच्छा सुनो, मैं अब दलील सुनो, अभी रुको, खामोश रहो यार, खामोश रहो, मैं दलील दूंगा, तुम अपनी अक्ल लगाते जा रहे बार बार।
अब मैं दलील देता हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस सुना दिया, सहाबी रसूल की बात सुना दिया। अरे मैंने आपको पूरी बात हो यार, जिस तरह कुरान की आयत में मुताशाबिह होती है उस तरह अल्लाह के नबी को नहीं मालूम है आयत मुताशाबिहात है, और अल्लाह के नबी बता रहे खाली कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। इस बात के ऊपर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। अब अरे अल्लाह के नबी के आप रहे हो, आप फिर बीच में आ रहे, आप मेरे टाइम पे आप ना बोले ना, मैं आपके टाइम पे नहीं बोला। आप फिर वही राग अलाप रहे हो, हमारी बात की तहकीक न करते हुए अब आप अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना चाहते हो। तो आप जिस चीज का इनकार कर रहे हैं उसको मनवाना मेरा काम तो है। इनकार नहीं कर रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे हैं हम। आप इनकार यानी आप अल्लाह को अर्श के ऊपर मानते हैं, आप बिदअत का इजाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, आप मानते या नहीं मानते? हमारा ये अकीदा है और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ने ये जो फरमाया ये सही फरमाया है। तो फिर अब आप कैसा बोले कि अल्लाह ताला जो है किसी भी देश में नहीं है? किस तरह है किस तरह नहीं, हमें नहीं पता। अब हल्लू आ रहे, मैं आपको देखो अब मैं देता हूँ अल्लाह ताला सुनो अभी किस तरह है किस तरह नहीं है अब मैं दलील देता हूँ, सुनो ना। अल्लाह कहता है कि हमारे देखो, अरे मेरी बात तो सुनो, आपकी बात मैं सुन लिया ना, अभी आप मेरी बात नहीं सुनोगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह अहले इल्म का इजमा नकल कर रहे हैं, इजमा दलील शरई है। कौन नकल कर रहे हैं? बिन राहवे, मैं कम सुन रहा था, क्या आपको हो भाई इंसान नाम रख लिया मगर सुनने कम आ रहा तुम्हारे को, क्या तो बोले तो नहीं, आवाज आपकी कट रही है। कौन इजमा नकल कर रहा है? इसहाक बिन राहवे। इसहाक बिन राहवे, आप आपका नंबर मेरे को दे दो, मैं डायरेक्ट आपको फोन कर लेता हूँ, ये बीच में मीडिएटर के काम नहीं, नंबर अलग बात है, हमारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। ये तो मैं रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूंगा ना। कर दीजिए, इसहाक बिन राहवे कौन है, इनकी तारीफ कर दीजिए। आपको नहीं मालूम है ना, तो आप क्या अस्मा और रिजाल का इल्म पढ़ो बोल के बड़ी बड़ी डींगे कहीं को मार रहे फिर यहाँ पे। आपको इसहाक बिन राहवे नहीं मालूम है तो आप जो है सो आगे बात करके हमारे को बोल रहे कि जो है तुम तकलीद करके मैं भी किसी का नाम बता दूं और कह दूं आप अहले इल्म का इजमा नकल कर रहे, कह रहे हैं कि तमाम अहले इल्म का इजमा है कि अल्लाह ताला के ऊपर है, इस आयत को मुताशाबिह कहा है तो उनके इजमा नकल करने से इजमा हो जाएगा। ऐसा मनाहज को रखने वाले को शिया का कश्मीरी में तोहफे असना असाकिया किताब का हवाला भी दे रहा हूँ, तो भी आप कहते हो आपकी अकल नहीं खुल रही हो, कहते हो इजमा नकल के अंदर। फिर इसी इजमा को जो है तो इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब शरह सुन्ना के अंदर नकल कर रहे हैं। फिर इसी इजमा को जो है तो तफसीर मजहरी के अंदर नकल किया गया। जब इजमा आ जाता है ना तो वहाँ पर किसी का कौल, किसी आलिम का कौल काम नहीं करेगा। और आपसे बताया कुरान से, अल्लाह के नबी की हदीस से, कहानी की बात है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इमाम मालिक ने भी कहा कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह का जो कौल मशहूर है वो क्या है? मेरी बात सुनो भैया, अरे साहब मालूम, मेरी बात सुनो, कैसी मजहूल, उसकी कैफियत मजहूल है। अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, सबको मालूम है बोल रहे, लेकिन उसकी कैफियत मजहूल है। अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है, ये ईमान लाना वाजिब है बोल रहे। वो सवाल वो सवालात करना कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर कैसे है, ठहरा हुआ है, बैठा हुआ, वो सवालात करना भी दावत है। अरे पहले जाओ खोलो, पुराने करीम खोलो, तमाम मुफस्सिर कुरान का तफसीर खोलो, देखो अभी आप पहले बता दिए कि अब आप हल्लू हल्लू बोल रहे कि हमारा ईमान, और ये किसी भी जगह आसमान जहत नहीं है, जमीन कोई शक नहीं है कि आप और आपका मजहब बिदअती मजहब है और शियाओं वाला मजहब है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा मुताशाबिह पे अमल करने वाला से बचने के लिए उससे दूर रहने के लिए हमारे आका ने फरमाया है, तो उसकी तहकीक जो है मखलूक की तख्लीक करने से पहले हमारा रब कहाँ था पूछ रहे, तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई चीज नहीं थी। आप क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह था कोई चीज नहीं थी और अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था बर। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाह अर्श के ऊपर है, सहाबी रसूल कह रहे हैं अल्लाह अर्श के ऊपर है। अल्लाह अर्श के ऊपर है, इसके ताल्लुक से जितनी हदीसें और आयतें आई हैं मुताशाबिह हैं, इसकी तहकीक कर लो। हेलो, अब आपको तो बात वहीं खत्म कर देनी चाहिए भैया, इंसान भाई हम इसकी तहकीक कर लेंगे फिर आपसे पास फोन करेंगे, लेकिन जबरदस्ती आप बात कर रहे हो अपनी बात मनवाने के लिए। इब्राहिम सियालकोटी और बहुत सारे जैसे आलिम लोगों ने शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा आलिम कहा है, अच्छा आलिम कहा है। हेलो
हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, मेरी बात सुने, मैंने इज्मा वो नकल कह किया। रहे हैं कि यूनुस बिन अब्दुल रहमान का अकीदा था कि अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह के नबी की हदीस और वो सुनाया शिया मैं। था। अल्लाह के नबी शिया और थे, एक मिनट, अल्लाह के कौन? नबी शिया थे, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आपकी कयास है। क्या मैंने सही बुखारी के अंदर पहले कयास आ गया? है कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सही जिस तरह बुखारी कुरान के की अंदर- आयत मुताशाबे हैं, उस तरह हदीस मुबारका भी मुताशाबे हैं। अच्छा सही बुखारी, अच्छा और इज्मा आप क्यों, अपनी इज्मा घटिया कैसे आ कयास गया? को इज्मा हमारी कैसे आ बात गया? पे न लगाएं और अपनी नहीं, इज्मा जिहालत का कैसे आ गया मुजाहरा न ये करें। बताए ना, इज्मा कैसे आ गया? मुतशाबिहात आयत के ऊपर इज्मा आता वो है। इज्मा आपके यहाँ आया होगा, मैंने देखा नहीं है, उसकी तहकीक करनी वो पड़ेगी। तो फिर उसमें भी कैसे आपका कैसे 90% बगैर करे झूठ कि होगा। आप जो है मुकल्लिद बन गए भाई? क्योंकि अहले हमको हदीस जो बात करता है वो झूठ ही करता है, कभी सही बात नहीं करता है। क्योंकि क्या, क्यों आप झूठ बोला तहकीक कर मैंने लीजिए, आपसे? सफा नंबर 17 शाह अब्दुल अजीज देहलवी का तोहफे असना सारिया पढ़ लीजिए, उसमें शियाओं का रद्द किया है उन्होंने। हाँ, तो शियाओं का रद्द किया, तो यहाँ इमाम अबू हनीफा आप लोगों का रद्द कर रहे, वो देखो में पहले। आप ही की तरह अकीदा रखने वाला जो है यूनुस बिन अब्दुल रहमान, वो पक्का इमाम शिया अबू था। हनीफा, और इमाम उसका अबू एक हनीफा। कबीला था जिसका मनहज ये था, और वो शिया था, राज़ी अच्छा था। चलो, अच्छा ये राज़ी था, हाँ, फिर तो जरा बात इसका करिए। जवाब। और मैंने एक भी कहा है आप- कि ये जितनी आयत है अल्लाह के अर्श पर होने की, वो सब मुताशाबे हैं, और जितनी हाँ। हदीसें मुबारक हैं वो सब मुताशाबे हैं। आप मुहद्दिसीन की तफसीर और उसूल हदीस पढ़ लीजिए, फिर आइए अहले हदीस बनकर मुझसे बात करिए। अभी बेवजह भाई बहस अब करते हो, अपने सुनो, आपके जिहाद का इमाम साहब, मुजाहरा मत करिए। समझ गए आपके भैया? इमाम साहब देखो क्या जवाब दे रहे, सुनिए ना। ठीक। और रसाइल सबा उसकी पेज नंबर 17 में दो अलग अलग अभी मैं रिवायतें रखता आ